Good afternoon, dear students. So, today again we will discuss some problems of trigonometry, which has already came in your CDS exam. So, those sums I am going to take today. Although all of you have done all the formulas of trigonometry. So, look at the first question. Question is if sine 7 sine square theta plus 3 cos square theta is equal to 4, then the value of tan theta. Then the value of tan theta. It can be cot theta also, cosec theta, sec theta. Anything can be possible here. Correct? Tan theta is value of tan theta we have to find. So whenever such situation comes, sine square and cos square, and you have to find the tan or cot, what we will do, we'll divide this equation by cos square theta, both sides. So if you divide by, if you start solving this, so 7 sine square theta plus 3 cos square theta is equals to 4. What I suggest, divide by cos square theta, right? And here also cos square theta. Both sides you divide by cos square, right? So what will happen, look at this, 7 tan square theta, it becomes sine square by cos square, and here it is 3, and here it becomes 4 sec square theta. Why? Because you know 1 by cos is sec theta, sine by cos is tan theta, fine. 4 sec square theta, you also write 4 into 1 plus tan square theta, correct? So now tan square theta you take in one place, so 7 tan square theta minus 4 tan square theta, and this is 4 minus 3, correct, which is 1. So we have 3 tan square theta, and which is 1. Therefore, tan square theta is equals to 1 by 3. And finally, tan theta will be plus minus 1 by root 3. Correct? So this way we can get the tan theta. Suppose you have to find the cot theta, then what you can do, you divide by cos square also. Fine. You can divide by cos square also, so that you can get the cosec square theta, and then you will get the 1 plus cot square. That way you can calculate cot theta also. Fine. So this type of sum, it came in a CDS earlier also. So you have to remember for this. Divide by cos square. Correct? Now sine square by cos square, tan square, and then sec square, we can write 1 plus tan square theta, and 7 tan square minus 4 tan square. This is 3 tan square theta, and tan square theta is 1 by 3. And therefore tan theta is plus minus 1 by root 3. Correct? This way we can get the answer of such problems. Now look at the second question. See, the formula is important too. Look, we have, let's say, question it is, if 3 sine theta minus plus 5 cos theta, 5 cos theta is equal to, this is 5, then the value of, value of 5 sine theta minus 3 cos theta. This value we have to calculate, correct? So see, what is important here, look at the coefficient of sine theta is here 3, and coefficient of cos theta is 5, and here the sine theta coefficient is 5 and cos theta coefficient is 3. So you see, this is alternate now. The demand is in coefficient is in alternate form. So here cos theta is 3 and sin theta is 5. So in such type of situation, how we will proceed? Whatever it is demand, जो demand रहता है, उस demand को 5 sin theta minus 3 cos theta, ये अपने को find out करना है. इसकी value, इसको आप let's say x ले लीजिए, let x, correct? अब इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, और जो गिवन है 3 sin theta plus 5 cos theta, this is given, which is 5. तो इसको 1 एंड इसको सेकेंड इक्वेशन करके दोनों को स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए. स्क्वायरिंग
squaring both sides and adding them, adding 1 and 2. स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड भी करना है, ठीक है. So we have now look at this, how it will come. 25 sin square theta plus 9 cos square theta. लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा. This is 30 sin theta into cos theta plus ये फिर 9 sin square theta plus 25 cos square theta plus 30 sin theta into cos theta, 30 sin theta into cos theta is equals to x square plus 25. ठीक है. LHS वाले LHS से ऐड हो गया, RHS वाले को RHS के साथ ऐड किया. This 30 sin theta cos theta and 30 sin theta cos theta get cancel, प्लस माइनस है. अब यहाँ पे क्लब करेंगे sin square theta, 25 कॉमन लीजिए. So we have 25 sin square theta plus cos square theta हो गया. ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ दिखा दिया है. प्लस 9 कॉमन लीजिए, यू विल हैव cos square theta plus sin square theta is equals to left with x square plus 25. This is x square plus 25. यहाँ से अपने को मिल गया 25 plus 9 is equals to x square plus 25. So we have x square equals to 9 and finally we can say x equals to प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं. ऑप्शन में प्लस 3 दिया रहेगा तो आप प्लस 3 आंसर डाल दीजिए. ऑप्शंस में 3, 4, 5 इस तरह से दी हुई है. सो हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. फाइन. सो स्ट्रेटजी क्या हो गई. स्क्वायरिंग, आपको कोफिशिएंट ध्यान देना कि अल्टरनेट कोफिशिएंट है, तो ऐसे सिचुएशन में स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड और ऐड कर दीजिए 1 and 2. इसका कंसेप्ट ये है कि देखो जब स्क्वायर करते हैं आप, तो ये 2ab जो दोनों का आता है, दोनों के होल स्क्वायर का 2ab, वो प्लस माइनस ऑल्टरनेट आता है, जिससे वो कैंसिल हो गया. एंड देन वी कैन क्लब 25 sin square theta plus 9 sin square theta where we took sin square theta common, करेक्ट. सो दैट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैंसिल हो जाते हैं. लेफ्ट विथ x एंड x की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट एज ए 3, करेक्ट. ऐसे सब में सी अगेन इट्स लाइक यू नो द प्रैक्टिस व्हेन यू डू, तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और यू कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. फाइन. आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं डेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज, ये क्वेश्चन मैंने लिया है. क्वेश्चन इट इज, इस तरह की सम भी बहुत सारे एग्जाम में होती है. इफ sin x upon 1 plus cos x, sin x upon 1 plus cos x, this is 1, plus sin x upon 1 minus cos x is equals to 4. Then x equals to, then x is, x की वैल्यू क्या होगी. जहाँ पे x की वैल्यू बोली गई है कि आप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही मिलेगा, आपका रहेगा. ये कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में. द x विल लाई ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 90 डिग्री, करेक्ट. तो ऑप्शन में 10 है, 15 है, ठीक है, 30 है एंड 45 डिग्री. सो वन ऑफ द ऑप्शन शुड बी द करेक्ट. सो इन द गिवन, इससे हम जो गिवन दी हुई है यहाँ से हम आते हैं, क्या कर सकते हैं इसको. टेक एलसीएम फर्स्ट. सो 1 plus cos x इंटू, फ्रैक्शन है तो एलसीएम ही लोगे पहले, 1 minus cos x. सो यहाँ से आ गया sin x इंटू 1 minus cos x प्लस sin x इंटू 1 plus cos x, करेक्ट. ये हमने एलसीएम ले लिया विच इज इक्वल टू 4. ऊपर हमारे पास 2 times ऑफ sin x रह गया, करेक्ट. क्यों, एक sin x माइनस cos x और एक sin x प्लस cos x गेट कैंसिल. दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 4. यहाँ से आप ये कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज sin x अपॉन, ये आ गया sin स्क्वायर x
this is 2. So 1 by sin x equals to 2. Therefore, sin x equals to 1 by 2. And you know sin की कौन सी वैल्यू 1 by 2 होती है? 30 डिग्री. So x equals to 30 degree is the correct option. So this option is correct one. स्ट्रेट अवे एलसीएम ले लेंगे आप. सिंप्लीफाई किया आपने, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स जो है कैंसिल हो गया. 2 sin x upon 1 minus cos square. 1 minus cos square is sin square x. And then 1 by sin x equals to 2. And therefore sin x is 1 by 2 and x equals to 30 degree. We can get the answer. ठीक है. Only you have to simplify कीजिए, LCM वगैरह लीजिए, and then finally you will get the value of x. Correct? Now look at the next problem. The next problem again, this is from trigonometry only. इस तरह के sums आप अच्छे से practice करें. पूछा है value of sin to the power 6 theta, sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta plus 3 sin square theta into cos square theta is, options we have 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये सारे ऑप्शन. So how we'll proceed? We'll have a formula. हमें एक फॉर्मूला याद रखना है which is AQ plus BQ का, जो अपने को अलजेब्रा में भी यूज होगा. दिस इज A plus B होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A plus B. ठीक है. इस फॉर्मूला का यूज़, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखें. ये ऑल्दो AQ plus BQ का एक और भी फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला हम ज़्यादा यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में. व्हाट वाज द अदर रिजल्ट? AQ plus BQ आप ये भी लिखते हो A plus B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर. ये रिजल्ट आप अलजेब्रा में ज़्यादा यूज़ करोगे, बट दिस वन इज जो मैंने ऊपर वाला लिखा है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से रखिए. सो लुक एट दिस. मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 6 है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और इसको मैंने 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखा. ठीक है. ये मैं AQ प्लस BQ इस फॉर्मूला के हेल्प से ब्रेक कर दूंगा. सो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस 3AB साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में फिर A प्लस B यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये जो पड़ी हुई है 3 साइन स्क्वायर कॉस थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ये तो 1 हो गया, 1 का होल क्यूब 1. दिस इज 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो 1, लेफ्ट विथ प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. सो फाइनली आंसर वी हैव 1. ठीक है. तो अगेन इट्स योर अप्रोच, इस अप्रोच से आप काम करते हैं. ये फार्मूला जो है AQ प्लस BQ का, ये रिजल्ट A प्लस बी होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस बी, ये आपको क्विकली आंसर की ओर पहुंचा देगा. ठीक है. सो दिस वे वी हैव डन दिस प्रॉब्लम. आई बिलीव यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट सिचुएशन देखिए. वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन इट इज value of cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta upon 1 minus sin theta into 1 by sec theta. इसकी वैल्यू चाहिए. We have option 4, 2, -2, none.
ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस। सो अगेन हाउ वी विल प्रोसीड, तो आप एलसीएम दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ गया कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलिए या एलसीएम बोलिए, इंटू 1 बाई सेक थीटा इंटू है बाहर में, सो ऊपर फिर से क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, नीचे क्या आ गया डियर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई सेक को आप कॉस थीटा भी लिख सकते हो, सो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, so finally left with 2, so 2 is the correct option। फाइन, तो आप एलसीएम वगैरह लेके दिस टाइप ऑफ सम यू कैन सिंप्लीफाई, ठीक है डियर। आइए एक नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को थोड़े आप स्पीड में करें प्रैक्टिस, तो दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। लुक एट दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम आई एम टेकिंग। सी, ये भी बड़ा ट्रेडिशनल सम है सीडीएस का, जो कई बार पूछा गया है। दिस इज वैल्यू ऑफ cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऑप्शंस दिए हुए हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह के सम में थोड़ा अपने को क्या है, दिमाग में फॉर्मूला का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास फॉर्मूला एक होती है, इस फॉर्मूला को cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा, दिस इज 1, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर इज 1, बिकॉज 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको इस 1 की जगह पे ये डाल दूँ और नीचे अपने को ऐसे ही छोड़ दिया, दैट मीन्स ये फॉर्मूला मैंने यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है वो आप देखिए। अभी हमारे पास ये cot थीटा माइनस cosec थीटा है, इस प्लस 1 की जगह पे मैं ये यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, करेक्ट, अपॉन डिनोमिनेटर में मैं आई विल लीव इट एज इट इज, दोनों जगह नहीं यूज़ करना है, एक ही जगह यूज़ करना है, या तो डिनोमिनेटर में यूज़ कीजिए या न्यूमरेटर में यूज़ कीजिए, ठीक है। अब मैं फैक्टर बना लूँ इसका, तो ये हमारा cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस इसका फैक्टर हो गया cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन this will be as it is as cot theta plus cosec theta minus 1। देर ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, ये कई बार सीडीएस में पूछी गई है। इसमें सेक टैन का भी कॉम्बिनेशन इसी तरह से किया जाता है, और यहाँ पे cot और cosec। अब देर यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, cosec थीटा माइनस cot थीटा। मैंने अगर कॉमन लिया तो देखो आप पहला टर्म ये क्या होगा, इसमें -1 मिलेगा, ठीक है, दिस इज -1, और यहाँ मिल जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, अपॉन ये तो ऐसे ही है cot थीटा प्लस cosec थीटा -1, करेक्ट, ठीक है। cosec माइनस cot लिया तो ये यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे तो ये -1 रह जाएगा, तो ये और ये टर्म गेट कैंसल, लेफ्ट विथ cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो ये ऑप्शन में भी दी हुई है,
मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, बट दिस इज द राइट आंसर, cosec थीटा माइनस cot थीटा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का cot थीटा माइनस cosec थीटा डोंट चेंज इनटू sin cos बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हम ये रिजल्ट का यूज़ करेंगे, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर जो इन प्लेस ऑफ 1 के लिए यूज़ किया, डिनोमिनेटर में नहीं, केवल न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे आप। फिर इसको फैक्टराइज किया एंड देन वी टुक कॉमन। आई बिलीव यू अंडरस्टूड। खुद से बना के देखिए एक बार, एक ही जगह 1 को चेंज कीजिए, ठीक है। Now look at the next problem. See this type of sum also it came in CDS. Question है, if sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 is equals to 3, then cos theta 1 plus cos theta 2 प्लस cos थीटा 3 की वैल्यू चाहिए। दिस विल बी व्हाट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 की वैल्यू 3 है। दैट मीन्स अगर मैं थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 90 डिग्री डालूँ तो ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगा, बिकॉज sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, करेक्ट। So what we have thought theta 1, theta 2, theta 3 90 which is correct। तो मैं अब इसमें डाल दूँ डिमांड में, तो डिमांड में क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90 डिग्री, और all of you know cos 90 is 0, so the answer will be 0, correct। तो थोड़े लॉजिकली आप समझते हैं कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फैक्ट को अगर समझ के रखते हैं तो यू विल बी एबल टू डू सच प्रॉब्लम्स। ये सम आए हुए हैं सीडीएस के सम्स। टुडे आई एम टेकिंग दोज सम्स विच ऑलरेडी केम इन सीडीएस डियर। सो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 3 3, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 क्या होगी, तो हमने थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 में 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया, करेक्ट। एंड देन दिस RHS सेटिस्फाइंग 3 मिल रहा है अपने को, तो ये थीटा 1 कॉस थीटा 1 थीटा 2 कॉस थीटा 3 में डाल दिया, विच केम 0। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब सिचुएशन। ऐसे प्रॉब्लम में थोड़े से बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। लेट्स से इफ sin x plus cosec x is equals to 2, then the value of sin to the power 2000 x plus cosec to the power 2000 x, इसकी वैल्यू चाहिए, करेक्ट। what would is the value of sin 2000 x into plus cosec 2000 x। सो फिर से देखो आप यहाँ पे, अगर मैं x की जगह 90 डिग्री डाल दूँ तो वी नो sin 90 1 cosec 90 also 1, सो इट इज सेटिस्फाइंग, इट इज 2, तो करेक्ट है। तो अब अपने डिमांड में भी यहाँ पे डाल दीजिए sin 90 डिग्री और होल टू दी पावर 2000 है ये, प्लस cosec 90 डिग्री डाल दीजिए एंड पावर 2000। सो क्या मिलने वाला है, 1 का पावर 2001, 1 का पावर 2001 एंड दिस इज अगेन 2। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 2 ओनली। अब इस पे कितना भी पावर डालें आप, आंसर 2 ही आना है। साइन पे n डाल दो तो भी 2 ही आना है, ठीक है। बड़े बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चन रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, करेक्ट। नाउ look at the next situation। See the next situation I am taking। ये भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो you will have, surely you will get the answer of such question। लिखा हुआ है रूट 1 माइनस कॉस अल्फा
रूट 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू चाहिए। करेक्ट। सो हमने आपको ऑक्सीजन करके एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में 1 प्लस कॉस 2a, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर a। अगर मैं यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये 2a बिकम्स a हियर। अगर 1 प्लस कॉस a लिखा, so दिस बिकम्स 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, ये 2a का इधर a होता है, a है तो a बाई 2 हो जाएगा, एंड 2 कॉस स्क्वायर एज इट इज। सिमिलरली 1 माइनस कॉस a जो होगा वो एवरीथिंग सेम साइन में आ जाएगा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। करेक्ट। सो इस रिजल्ट में भी आप 1 माइनस कॉस अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 get cancel, sin square by cos square tan square, root of tan square alpha by 2, and then you can write tan alpha by 2. So this will be the answer. Only the formula, see CDS they have asked such situation so that ये कुछ रिजल्ट जो है अपने को ट्रिग्नोमेट्री में जो डिस्कस किया था वो याद रखेंगे, so that will be fine. Fine. So now we'll go to some more situation. Look at this. We have one more situation. Question कह रहा है कि if a equals to sin square theta plus cos to the power 4 theta for all real values of theta, for all real values of theta, तो अपने को ऑप्शन करेक्ट करना है कि विच ऑप्शन इट इज करेक्ट। दीज आर ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ, उनमें से करेक्ट ऑप्शन वी हैव टू चूज। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है। सो ये ऑप्शंस अपने को चूज करने हैं। अब चेक करना है कि किस तरीके से इस तरह के सम को आप हैंडल करेंगे। देख लीजिए a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा दी गई है। ठीक है, सो लुक एट दिस, हाउ विल प्रोसीड फॉर सच सम। दिस सम आल्सो केम इन CDS dear. So look at this, how we will go. We have a equals to sin square theta plus cos to the power 4 theta. अब cos to the power 4 को cos square theta into cos square थीटा में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, और हमें पता है cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। ये सब चीज़ें थोड़े इन्फॉर्मेशन याद रखें आप। तो मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को ऐसा कर सकता हूँ कि लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा लेस देन 1 होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 ही हुआ, क्योंकि ये पार्ट को मैंने लेस देन 1 लिया है। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1। पहला तो a आ गया लेस देन इक्वल्स टू 1। फिर से आप देखो, इसी a में साइन स्क्वायर की जगह पे मैं क्या कर दूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये कॉस टू द पावर 4 थीटा है। करेक्ट। अब मैं इसको यहाँ से कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में ले जाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में डालूँ अगर, तो ये अपने को कैसे दिखेगा, ये cos टू द पावर 4 का मैंने cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिखा, माइनस देंगे 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू आपको 1/2 देना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा, प्लस 1/4 भी देना पड़ेगा, इवन माइनस 1/4 भी लिखना पड़ेगा,
एंड देन +1 आपका एंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टोटल क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा -1/2 होल स्क्वायर अप टू यहाँ तक के टर्म को, ठीक है। एंड 1 - 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 3/4 प्लस 3/4, ठीक है। 1 - 1/4 इज 3/4। अब ये पूरी क्वांटिटी देखो, ये तो पॉजिटिव है, अगर थीटा 0 भी हुई तो भी ये पॉजिटिव होगी। ये पूरी क्वांटिटी का किससे बड़ी हो जाएगी, 3/4 से बड़ी होगी, ठीक है। सो ए शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3/4, बिकॉज ये तो पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ये तो हमेशा अपने को मैक्स मिनिमम 0 देगा, नहीं तो 0 से बड़ा ही देगा, यानी ये 3/4 प्लस में है तो ए हमेशा 3/4 से बड़ा हो जाएगा। सो देयरफॉर हम ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर दैन 3/4, करेक्ट, एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू इनके बीच लाइज करेगी, ठीक है। चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो थोड़े से कंसेप्ट को ब्रेक करिए, कंसेप्ट को क्लियर रखें तो यू कैन अंडरस्टैंड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर किया, कॉस स्क्वायर हमेशा पता है लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, याद रखें, फाइन। लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होता है। तो यहाँ पे ये पहला सिचुएशन आया ए लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर 1 - cos स्क्वायर cos 4 में मैंने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर बना दिया, सो दैट ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। वो हो सकती है मैक्स टू मैक्स, ये मिनिमम 0 हो सकता है, तो 0 + 3/4, दैट मीन्स ए जो है 3/4 से हमेशा बड़ा होगा। दैट इज वाई एट द एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए, करेक्ट। से इस तरह के और भी सिचुएशन आप कर सकते हैं, देखें तो लुक एट दिस। एक और सिचुएशन लिखता हूँ मैं, ये लिस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू करके आती है क्वेश्चन। वन सिचुएशन इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ लीस्ट या मिनिमम वैल्यू, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 sin square theta plus 3 cos square theta is लिस्ट वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 5, these are options, ठीक है। सो हाउ वी विल प्रोसीड, लुक एट दिस। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को बुलाते हैं, दिस इज 2 sin square theta प्लस 3 cos square theta। अब इसमें से मैं 2 sin square theta और cos square theta को एक साथ लेता हूँ, 2 cos square theta एंड प्लस दिस इज cos square theta, ये 2 आ जाएगा प्लस cos square theta, ठीक है। कैन वी से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि cos square theta 0 हो सकता है मैक्स टू मैक्स, या उससे बड़ी वैल्यू होगी लेस देन 1, तो यानी ग्रेटर देन 2 लिख सकता हूँ। तो मैं लिस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2। सो देयरफॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ 2 sin square theta plus 3 cos square theta is 2, करेक्ट। दिस विल बी द लिस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू इसके ऊपर ही होगी ना, ये 2 + cos square theta ग्रेटर देन 1 होता है, या 0 आप करोगे तो 2 + 0 इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये cos square theta पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, तो ये 2 से बड़ी होगी, यानी लिस्ट वैल्यू हम हमेशा 2 लिखेंगे, ठीक है डेयर। आइए एक और सिचुएशन देखते हैं, ये थोड़े लिस्ट और ग्रेटर वाले में थोड़ी प्रैक्टिस रखिए, सो दैट आपको इजी गिरेगा ये। नेक्स्ट सम देखिए, we have one question, if a equals to
cos square theta plus sec square theta, then a less than 1, सेकेंड ऑप्शन है a equals to 1, 2 greater than a means a less than 2 and greater than 1, and fourth option is a greater than equals to 2, करेक्ट। अब आइए इस तरह के सम में है, फिर से मैं a को बुलाता हूँ, a equals to क्या है हमारे पास, cos square theta प्लस sec square theta। आप सेक को कॉस में मत बनाएं, आप इसको क्या करें, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर की ओर ले जाएं। आप इसको कर दीजिए कॉस थीटा माइनस सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है दिस वी कैन राइट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला इन अलजेब्रा, वी नो दैट, करेक्ट। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह से लिखा मैंने। अब आप ये देखो कि ये तो 2 हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा 2, और ये क्वांटिटी अभी यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, ये cos थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। दिस इज a हमने मेंशन किया है, तो a हमारा ये तो पॉजिटिव होगा या मिनिमम 0 हो सकता है, और दिस इज गोइंग टू बी प्लस 2, तो a हमेशा क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, a विल बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, दिस विल बी द आंसर। क्योंकि ये 0 हो सकता है, ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये 2 के बराबर या 2, इसकी वैल्यू कुछ 0 से बड़ी आई तो 2 से बड़ा ही होगा, यानी a ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 विल बी द सोल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये थोड़े मैक्सिमम मिनिमम के प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से कंट्रोल करें, करेक्ट डियर। तो ऐसे सम एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो यू विल बी एबल टू हैंडल सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। लुक एट देयर, वी हैव अ नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिनिमम मैक्सिमम के हैं, इसके लिए रिजल्ट भी एक होता है, एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखते हैं, a sin x प्लस b cos x प्लस c। अगर कोई fx दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शन a sin x प्लस b cos x प्लस c, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू याद रखना आपने को, c प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू विल बी c माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये ABC क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है f थीटा इक्वल्स टू 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा एंड प्लस लेट्स से 2, करेक्ट। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, थीटा और थीटा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 थीटा लिखा तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सो द मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा, c यहाँ पे 2 है, सो 2 प्लस रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 2 प्लस रूट 41, इसकी मैक्सिमम होगी। एंड मिनिमम वैल्यू विल बी 2 माइनस रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 2 माइनस रूट 41, करेक्ट। मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये थीटा और ये थीटा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 थीटा है तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, करेक्ट। बट इट शुड बी a sin x प्लस b cos x, स्क्वायर नहीं होने चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं, साइन थीटा सेम होने चाहिए, 3 थीटा 4 थीटा 4 थीटा, एंड कांस्टेंट कैन बी एनीथिंग प्लस 2 माइनस 2, कुछ भी हो। सो दिस वे वी कैन गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको फंक्शन भी कहते हैं, एफ से हमने डिनोट किया है। ये देखो आपने एफ थीटा लिया बिकॉज फंक्शन इज ऑफ थीटा, तो ये मैक्सिमम मिनिमम दैट यू हैव टू रिमेंबर, समटाइम्स इट कम्स, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
Now we'll move to our next situation is, look at this question दी हुई है, sin x plus sin square x is equal to 1. Then the value of cos to the power 8x plus 2 times of cos to the power 6x प्लस cos to the power 4x, इसकी वैल्यू चाहिए। ऑप्शंस में है डियर 0, y -1, 1 एंड 2। क्लियर? दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ से आते हैं sin x is what we can write, sin x 1 minus sin square x, can we write sin square x उस साइड लिया, sin x equals to now cos square x, sin x equals to cos square x। अब हम इस एक्सप्रेशन को आते हैं, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ साइन में। cos टू दी पावर 8 को आप cos टू दी पावर स्क्वायर का होल 4 लिख सकते हो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x का होल क्यू लिख सकते हैं आप, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई, और ये cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है? नाउ इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर x आई एम गोइंग टू पुट sin x नाउ। तो ये साइन, ठीक है, ये अपने को क्या मिल गया, sin x टू दी पावर 4 प्लस 2 sin क्यूब x, क्यूब आएगा 3 पावर, एंड प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है? अब आप देखो इसमें, अगर मैं इसको sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखूँ, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू sin स्क्वायर x इंटू एक साइन एक्स, तो ये जाके साइन क्यूब एक्स हो जाएगी, और ये फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए अपना साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा डे, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन 1, correct? So 1 का square is going to be 1. So the answer of cos to the power 8 plus 2 cos to the power 6 plus cos to the power 4x का आंसर क्या आ गया dear? 1. 1 is the correct answer. केयरफुली समझ के लीजिए इस तरह के सम को, ठीक है? Now look at the next situation. Next situation is, देखो ट्रिग्नोमेट्री में इट कैन बी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो अपने को केवल कंट्रोल में ये रखना है कैसे क्या की जाए। लुक एट दिस क्वेश्चन है, इफ tan alpha by 2 is equal to 1 by 3, tan alpha by 2 है, then the value of tan alpha plus sin alpha, tan alpha plus sin alpha की वैल्यू चाहिए, करेक्ट? ऑप्शंस दिए हुए हैं 20, 20/27, ठीक है, 27/20, we have 27/25 and none of these, okay, this is 20. So tan alpha by 2 1/3 है, tan alpha plus sin alpha चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है डेयर, tan alpha is equals to 2 tan alpha by 2, formula is important here, upon 1 minus tan square alpha by 2, ये होता है हमारा tan a का फॉर्मूला, याद होगा tan 2a को tan a में किया तो हाफ एंगल हो जाएगा, and sin alpha in terms of tan, which is 2 tan alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2, तो ये रिजल्ट जो है इसको कहते हैं sin alpha in terms of tan, tan alpha ये तो in terms of tan में होती ही है, cos alpha भी याद रखो आप, cos alpha in terms of tan 1 minus tan square
अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ठीक है। सो बट हमें यहाँ tan अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा की ज़रूरत है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे tan अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये है 2 tan अल्फ़ा बाई टू, 2 tan अल्फ़ा बाई टू इज़ 1/3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू विच इज़ 1/9 प्लस साइन अल्फ़ा है 2 tan अल्फ़ा बाई टू, 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/9। करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/3 इंटू 9/8, ठीक है, प्लस 2/3 इंटू 9 दिस इज गोइंग टू बी 10। अब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है अपने को 3/4 प्लस 5 और 3/5। ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो, ये 20 आ गया, ये 12 और ये 15, 27/20। करेक्ट। 27/20 is the correct answer. So what is important here? These results. अगर आपको ये रिजल्ट याद रखते हैं, tan अल्फा in terms of this, sin अल्फा in terms of tan, करेक्ट। और मैंने एक एडिशनल ये भी लिख दिया जो याद रखना है आपको को, cos अल्फा in terms of tan। बेसिकली ये सब कुछ tan 2a से आया है। tan 2a आप क्या लिखते थे, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो a जब करोगे तो हाफ हो जाएगा, tan a क्या लिखोगे, 2 tan a बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू। करेक्ट। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर्मूला। उसी तरह साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan होता है, साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan फॉर्मूला था हमारा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये जब 2a होता है तो a होता है, 2a है तो यहाँ एंगल a होती है, जब a होगा एंगल तो यहाँ a बाई टू हो जाएगा। यही कंसेप्ट आपने फॉर्मूलाज में सीखा है। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू, फॉर्मूला के वीडियो को थोड़ा आप अच्छे से गो थ्रू करें, सो श्योरली इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि फॉर्मूला पे ही बेस्ड सीडीएस के मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री के सम होते हैं और मैक्सिमम मिनिमम के वैल्यू। नाउ वी हैव नेक्स्ट सिचुएशन, लुक एट दिस क्वेश्चन। इट इज tan अल्फा is given 1/2 and tan beta this is given 1/3, then tan 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन है 2, 3, -3, -2। ठीक है। tan 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। दीज आर ऑप्शंस। करेक्ट। सो नाउ हाउ विल प्रोसीड। तो अपने को ये tan 2 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। सो tan a प्लस बी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे आप, tan a प्लस बी, दैट यू नो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है। ए की जगह मैंने 2 अल्फा लिया हुआ है। अब फिर हमें tan 2 अल्फा का फॉर्मूला भी जस्ट लिखा था प्रीवियस सम में, वो क्या थी, 2 tan अल्फा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू है। सो 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan बीटा को तो रहने देंगे, इसकी वैल्यू है हमारे पास, अपॉन 1 माइनस 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इंटू दिस इज tan बीटा। सो डेयर हमने tan 2 अल्फा का फॉर्मूला ब्रेक कर दिया, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड विल सी व्हाट वुड बी द आंसर। सो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan बीटा वी हैव 1/3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू tan बीटा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/4। ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई वगैरह करें, सो फाइनल आंसर वी विल हैव, दिस इज गोइंग टू बी 3। इसको चेक कर लें, 3 विल बी द करेक्ट आंसर।
फाइन, इसको आप चेक करके देख लीजिए सिंप्लीफाई करके वेदर 3 इज करेक्ट और नॉट। 2 मिनट का टाइम लगेगा डियर, तो इसको सिंप्लीफाई, ये सब काम थोड़ा खुद से भी करेंगे, यू विल फाइंड सिंपल। ये कैलकुलेशन यू हैव टू डू योर सेल्फ, यहाँ से आप ये खुद से कीजिए इस सब कैलकुलेशन, एट द एंड यू विल गेट द वैल्यू 3 मिल जाएगा आंसर। 3 इज द करेक्ट वन। सो वंस अगेन ये tan 2 अल्फा का फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट, अगेन tan 2a का फॉर्मूला विच इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला अपने को tan 2a का ध्यान में रखना है ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? नाउ लुक एट दिस वन मोर सिचुएशन। अब देयर क्वेश्चन आ गया साइन, ये फॉर्मूला बेस्ड पूछते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन, तो आपको फॉर्मूला याद है साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख लीजिए, केवल प्लस की जगह माइनस कर देना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, व्हाट विल हैपन, दिस एंड दिस गेट कैंसिल, सॉरी दिस और दिस फर्स्ट एंड थर्ड गेट कैंसिल, ये रह जाएगा, अपने को क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, ठीक है। सिंपल है, केवल फॉर्मूला आप कंपाउंड एंगल का यूज करो, आप प्लस माइनस करो, यू विल गेट 2 कॉस ए कॉस बी। क्लियर? आइए एक और सिचुएशन देखते हैं, ये कंपाउंड एंगल बेस्ड पे प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, तो यू कैन एबल टू डू इट। क्वेश्चन है कॉस 68 डिग्री इंटू कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 68 इंटू साइन 68 इंटू कॉस 82 डिग्री, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये आप तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी में ये दिख रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी ले लिया इसको, प्लस यहाँ साइन ए तो दिख गया, हमें साइन बी चाहिए, तो कॉस 82 को आप क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइन में, साइन 8 डिग्री, ठीक है, 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट, देखो आप कॉस 90 माइनस 8 लिख सकते हो 82 को, ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा, दिस इज दैट इज व्हाई इट इज साइन 8 डिग्री। तो इसको मैं अगर साइन 8 डिग्री लिख दूँ, ये 8 डिग्री, ये हो गया साइन बी, ठीक है, क्योंकि कॉस बी आप 8 डिग्री दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अपने पास ए की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए 68 डिग्री, माइनस बी की वैल्यू क्या हमने लिया है 8 डिग्री, दिस बिकम्स cos 60 degree, and which is nothing but 1/2, correct? So the answer of this expression is going to be 1/2, cos 68 into cos 8 degree plus sin 68 into cos 82 degree। एक जगह चेंज यहाँ पे किया हमने, cos 82 डिग्री को sin 8 डिग्री में कन्वर्ट किया, and then we have this formula formed, cos a cos b plus sin a sin b, which you know cos a minus b, and this is what the value। ठीक है dear, look at this next situation देखेंगे। we have next problem, this is फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आप थोड़ा याद रखते हैं, पूछते तो नहीं सीरीज में कम पूछते हैं, बट फिर भी फॉर्मूला याद रहता है तो आप कर लेते हैं, साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू चाहिए। ऑप्शन में दिया हुआ है tan a tan 2a tan a tan 2a cot 2a
and cot A. These are options. तो ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला था जिसमें मैंने बोला था आपको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद रखने के लिए, विच इज 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू. ये एक फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी है, इसका भी फॉर्मूला याद रखना है अपने को, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू. और याद रख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. मैंने फॉर्मूला में कराते समय टेक्निक भी बताया है कैसे याद रखना है. ठीक है, सो ये यूज़ करेंगे आप, साइन सी प्लस साइन डी. ये आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू. करेक्ट, ये आ गया देयर अपॉन cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. करेक्ट. तो अपने को ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल ही हो रहा है, 2 and 2 भी कैंसिल. तो ऊपर क्या रह गया, साइन 2a, नीचे रह गया cos 2a. एट द एंड वी विल गेट tan 2a. The answer is tan 2a. ठीक है. सो अगेन दिस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 4 होते हैं, मैंने 2 यहाँ लिखा है. 2 आप और फॉर्मूला बैंक में देखिए, इस तरीके से विल गेट द ऑप्शन tan 2a. फाइन. सो डियर, आई बिलीव इस तरह के प्रॉब्लम में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉब्लम्स आप करेंगे and you can post your doubt. Couple of students they are posting their doubts in that group. तो आप भी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाउट्स भी पोस्ट कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी डाउट्स हैं. ठीक है, बिकॉज एज नाउ नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट लॉग. अलजेब्रा में एंटर करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री के अब जितने डाउट्स हो सकते हैं आप सेंड कीजिए, और हाइट्स एंड डिस्टेंस मैं एंड में लूँगा. ठीक है, एंड लास्ट सेशन में हाइट्स एंड डिस्टेंस रखूँगा, सो दैट एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला रिकैप हो जाएंगे. ठीक है. सो मीनवाइल ऑल ऑफ यू गो थ्रू प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर रेफरेंस बुक. जो भी रेफरेंस बुक आप रेफर करते हो वहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करो. जो डाउट होता है यू कैन सेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप. आई बिलीव 1 or 2 students they are sending their doubts. Why not all of you are can send, so that any other student also can solve. जब आप डाउट भेजेंगे तो तभी तो सबको पता चलेगा दिस इज़ व्हाट कॉमन डाउट्स. तो दूसरे स्टूडेंट भी उस डाउट को अटेम्प्ट कर पाएंगे. मैं तो एंड में हूँ ही डाउट को सॉल्व करने के लिए, बट दिस रिक्वेस्ट इज़ टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, ट्राई टू गेट सम डाउट्स एंड पोस्ट इट इन ग्रुप, सो दैट मैं भी सॉल्व करके दूंगा और आपकी भी डाउट क्लियर हो जाएगी. But for this you have to practice problems. ठीक है dear. So the next class I am going to take I am entering in fact in algebra में मैं एंटर करूँगा. ट्रिग्नोमेट्री का मैंने जो बोला आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस में एंड के सेशन में लूँगा. सो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट अलजेब्रा. द फर्स्ट टॉपिक आई एम टेकिंग लॉगरिथम. ठीक है, लॉगरिथम मैं सिखाऊंगा, उसमें प्रॉपर्टीज़ बेस्ड, क्योंकि इससे भी लॉग के 2 to 4 क्वेश्चंस लॉग के दिखते हैं CDS में. ठीक है, सो दैट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. फाइन. सो ऑल ऑफ यू टेक केयर योरसेल्फ एंड डू प्रैक्टिस. वंस यू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स you will be perfect there. So with this note I am going to stop this session, and finally again I am requesting, collect the doubts collect कीजिए ट्रिग्नोमेट्री के, और पोस्ट इट इन आवर ग्रुप. ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क लिख दिया. ठीक है, आई नो दैट यू आर नॉट किड. आप बच्चे नहीं है कि मैं 10 एक 2 क्वेश्चन लिख के दूं और आप करें. you all are matured now. All of you know how to prepare for a competitive exam. So collect doubts and post in group, so that we can simplify those doubts. Fine. चलिए, थैंक यू वेरी मच.
Take care all of yourself. Next class will start logarithm. Thank you.